has any doubt related to what we have discussed yesterday, you can ask. If you have any question related to what we have discussed yesterday, you can clear your doubts. Till your friends are joining, we can clear the doubts. Not a problem. So can you revise the parabola part? हाँ, that तो I will do. वो जो रूट फाइंडिंग का है वो ना, जो रूट्स का है वो, कि पैराबोला में व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. Yes, Glory, parabola में exactly what you want. Yes sir, that only the root वाला which you told. अच्छा, the roots वाला पार्ट, ठीक है, वो तो मैं करूंगा रिवाइज. उसको छोड़ के और कुछ है क्या? Okay, so I think 45 students have joined. We will start. We will basically we will start from the revision only. So till that time the count will increase. Okay, so yesterday we had discussed about rounding of the numbers. We have discussed how to round off the numbers. So if you want to round off the number after 4 decimal digits, then we have to basically concentrate on the 5th decimal digit. If the 5th decimal digit is more than 5, we add 1 to the previous digit. If the 5th decimal digit is less than 5, we just chop off. And if the 5th decimal digit is equal to 5, then we see what is the 4th decimal digit. If it is even, so chop off karna hai. And if it is odd, so we add +1. These were the rules of rounding. We have done n number of examples. Then we discussed the formulas for the error, absolute error, which is also known as the true error. Uska formula is absolute value of actual minus calculated value. Then we had discussed relative error. Relative error is absolute error upon the actual value. Percentage error is relative error multiplied by 100. So basically, what is the formula for percentage error? Percentage error ka formula is absolute value of actual value minus calculated value divided by actual value multiplied by 100. This is the formula for your percentage error, which is nothing but relative error multiplied by 100. Then we were discussing the example of the basically a geometrical diagram which helps us to find geometrically how do you get the roots. Okay, so these were the two diagrams. Both of them, they were basically the parabolas. Now in the first diagram, what we can see is the first diagram basically lies above your x-axis. Second diagram is lying, part of the second diagram is below x-axis and part of the parabola in the second diagram is above x-axis. So what is the peculiarity that what happens when your curve cuts your x-axis? Basically the point at which the curve cuts your x-axis will give you the root. Okay, the point at which the curve cuts your x-axis will give you the root. That means in the first diagram, the graph lies above x-axis, so your graph is never crossing or it is never cutting your x-axis. So in the first diagram, the root will not be there, or you can say there is no real root for the graph in the first diagram. Whereas in the second diagram, you can see there are two real roots because there are 2 points at which the curve is cutting your x-axis, or you can say the curve intersects your x-axis at 2 points. So there are
two real roots for the curve in the second diagram. ठीक है, again I repeat, in the second diagram the curve cuts your x-axis at 2 points. The point at which the curve cuts your x-axis will be the root of that curve. Since it's a parabola, we had discussed yesterday कि parabola है तो it is a quadratic curve, basically a quadratic polynomial. So you can see that in the second diagram the curve or the polynomial has two roots because the curve is cutting your x-axis at 2 points. Then what you can observe in the second diagram specifically, the part of the curve which lies on the positive side of your y-axis, that means on the right side of your y-axis. The part of the curve which lies on the right side of the y-axis is nothing but an increasing curve. Okay, it is nothing but an increasing curve, and the part of the curve on the left of your y-axis is basically a decreasing curve. The point of inflection or the point of cusp, that means the point जहां से तुम्हारा curve का direction change हो रहा है, is the point at which your curve intersects y-axis, which lies which lies below x-axis. You can see that point. The point जहाँ पे तुम्हारा curve y-axis को intersect कर रहा है, that is basically the point जहाँ से तुम्हारा diagram का ये change हो रहा है. On the left of y-axis, it's a decreasing curve. On the right of y-axis, it's an increasing curve. And जहाँ पे वो intersect हो रहा है y-axis को, that is what is your point of inflection. ठीक है. Now what we will do is we will concentrate on the part of the curve which lies on the right of y-axis. Okay. Now we know the curve is basically a parabola. Yesterday we have discussed it is continuous. Whenever the curve is continuous, the graph will be a smooth curve, or you can say the graph will be a smooth graph. Smooth graph, it doesn't mean कि तुम लोग एकदम smoothly हाथ से draw करते हैं. Smooth graph का meaning is कि there is no cut, no break in the graph of the curve. Okay, there is no break, no curve, no cut in the graph. So the part of the curve which lies on the right of the y-axis, I am talking about the second diagram, which is basically an increasing curve, वो continuous है. Increasing, decreasing is not important. What is the important part is कि वो continuous है. So what we have, part of the curve on the right of y-axis is basically an increasing curve. वो fourth quadrant से first quadrant में जा रहा है. ठीक है, it's a continuous curve. वो fourth quadrant से first quadrant में जा रहा है. That means वो नीचे से ऊपर जा रहा है. अब since it is continuous, the graph will not have any breaks, graph will not have any cuts. तो जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, and since it is continuous, it has to cut your x-axis at some point. Okay, it has to cut your x-axis at some point, and this is the point where you will get the root. Okay, this is the point where you will get the root. And why this thing is possible? Because the graph is a continuous curve, and you can see that there is a part of the curve which lies in the fourth quadrant and part of the curve which lies in the first quadrant. Okay. Now tell me the part of the curve which lies in the fourth quadrant. तो वहां पे y का वैल्यू क्या होगा? In the second diagram, there is a part of the curve which lies in the fourth quadrant. There is a part of the curve which lies in the first quadrant. So for the part of the curve which lies in the fourth quadrant, तुम्हारा y का वैल्यू क्या होगा?
Negative. Negative. Very good. And the part of the curve which lies in the first quadrant, वहाँ पे y क्या होगा? Positive. 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 Good. So see, ये जो y हम लोग बोल रहे हैं, y is nothing but your f of x. That means in the fourth quadrant तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, in the first quadrant तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा. ठीक है? And by the diagram we can see it's an increasing curve. So basically नीचे से ऊपर जा रहा है. What we are interested is there is a point on the curve जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, as well as there is a point on the curve जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है. Is this clear what I am telling? Again I repeat, we are concentrating on the part of the curve which lies on the right of y-axis. In that part of the curve you can clearly see that there is one point on the curve where function ka value is negative. There is one point on the curve where the function ka value is positive. You can see first quadrant में कहाँ पे भी ले लो तो function का value positive होगा, fourth quadrant पे कहाँ पे भी ले लो function का value negative होगा. There are infinitely many points, but we are interested in at least one point. So that is why we are telling कि there is a point on the curve जहाँ पे function का value negative है. There is a point on the curve जहाँ पे function का value positive है. That means what is happening? It is this part which we are considering now कि function का value negative है, function का value positive है. This will confirm कि तुम्हारा जो curve है वो x axis को कट कर रहा है करके. ओके, दिस विल कंफर्म कि तुम्हारा कर्व x axis को कट कर रहा है. सी इफ यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट डायग्राम, ओके, इफ यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है. राइट, यू कैन क्लियरली सी कि फंक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है. क्यों हो नहीं रहा है नेगेटिव? बिकॉज बिकॉज तुम्हारा जो फंक्शन है इट इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस. ठीक है, जो तुम्हारा ग्राफ है इट इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा है. राइट, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहे. सो यू कैन क्लियरली सी कि फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं है. द फंक्शन is always greater than 0 for all values of your x. So that is why that curve does not have a real root, क्योंकि वो curve कभी x axis को कट ही नहीं कर रहे. Whereas जो second diagram है, in that diagram we can clearly see कि there is a part of the curve which lies in the fourth quadrant, part of the curve which lies in the first quadrant. तो कंटिन्यूअस नेचर है फंक्शन का, तो नीचे से ऊपर अगर वो जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको एक्स एक्सिस को कट करना ही है, वो जंप नहीं कर सकता है बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, so what is the important thing? If there is a point on the curve where the value is negative, there is a point on the curve where the value is positive. Since the function is continuous, it has to cut your x-axis. Otherwise वो नीचे से ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा करके. ठीक है, तो फॉर गेटिंग अ रूट व्हाट वी शुड हैव कि फंक्शन का वैल्यू कोई पॉइंट पे नेगेटिव होना चाहिए एंड फंक्शन का वैल्यू कोई पॉइंट पे पॉजिटिव होना चाहिए. सो दैट विल गारंटी कि वो दो पॉइंट के बीच में तुम्हारा फंक्शन विल कट योर एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस. ठीक है, इट विल कट योर एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, I will go to the this thing. हाँ. So that is basically the criteria for existence of the root. Okay, because what is the root? Root is nothing but the point where your curve cuts your x-axis. तो उसके लिए अपने को पहले क्या करना है? We have to assure कि तुम्हारा कर्व एटलीस्ट वन पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है एंड एटलीस्ट वन पॉइंट पे पॉजिटिव हो रहा है. तो क्या जब ये पैरिटी चेंज होगा तुम्हारा फंक्शन का, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी के वजह से तुम्हारा कर्व को एक्स एक्सिस को कट करना ही करना है. वो बिना एक्स एक्सिस को कट किए जा ही नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जंप मार नहीं सकता है. इट द कर्व हैज टू बी अ स्मूथ कर्व. So due to the continuity का property and due to the property के function का value negative है at some point and function का value positive है at some point, that will assure you कि ये दोनों point के बीच में there is at least one root. There can be many roots. Okay, there can be many roots. अगर तुम्हारा वो हिल के जैसा zigzag वाला कर्व है तो वो बहुत सारा पॉइंट्स पे कट करेगा, राइट. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, बाकी ज्यादा किया तो चलेगा बट मिनिमम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को. सो दैट पॉइंट विल एक्ट एज अ रूट. So now we discuss about the bisection method. Bisection method में the formula, it's an iterative method. Okay, iterative method मतलब जैसे हम लोग को loop होता है, loop is repeated 5 times. So in that case your loop variable goes from 1 to 5. 5 बार वो loop as it is घूमेगा करके. So you can say that iterative method is of the similar type. It will be repeating in a certain criteria. So bisection method का root का formula is a plus b divided by 2. ठीक है. So how does this work? See, you can see the diagram. We have the curve. यहाँ पे increasing decreasing पे concentrate नहीं करेंगे. We have the curve which is a continuous curve. You can see वो ग्राफ में किधर भी ब्रेक नहीं है, किधर भी कट नहीं है करके. Okay, so it's a continuous curve. You can see कि when x is equal to a, I hope that a and b are visible in the diagram. Yes, sir. sir. Yes, sir. It is. Okay. So when x is equal to a, you can see कि तुम्हारा curve first quadrant में है, right? When x is equal to a, तुम्हारा curve first quadrant में है. That means तुम्हारा f of a positive होगा, right? When you consider x equal to b, you can see at that point function का value fourth quadrant में है, right? Function का value fourth quadrant में. See, a और b दोनों y एक्सिस के राइट में है, a और b दोनों पॉजिटिव है, बट फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी कि f ऑफ a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ b फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो लेस देन 0 है. So what we are getting 2 points in such a way कि f of a greater than 0 है, f of b less than 0 है. तो you can clearly see कि तुम्हारा फंक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है तो x एक्सिस को कट करके आ रहा है. So the point at which the curve will intersect, or when the curve will cut the x axis, that point will act as a root. ठीक है. So how does this bisection method works? Bisection method के लिए what we are supposed to do is
we are supposed to find 2 points A and B. Okay, we are supposed to find 2 points A and B such that f of A and f of B are of opposite signs. Okay, I am explaining the method in general. That is the reason I am not telling f of A greater than 0 होना चाहिए, f of B less than 0 होना चाहिए. F of A and f of B should be of different signs. मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए. क्यों? बिकॉज दैट विल गारंटी अस कि वो ए और बी के बीच में रूट है करके. ठीक है. So after getting 2 points A and B such that f of A and f of B are of opposite signs, what we have to do, वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला यूज करके we have to find the root. So when we take x equal to a plus b divided by 2, why it is known as a bisection method? This is the reason कि a plus b divided by 2, that means हम लोग वो लाइन सेगमेंट AB जो है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग. अज्यूम करो you get the value as x1. I know x1 is not exactly the center, is not the midpoint of line segment AB, but you assume कि वो वैल्यू मिलता है अपने को x1. ठीक है. So first step was to find A and B such that f of A and f of B are of opposite signs. Then we use a formula and find x1 as a plus b divided by 2. After finding x1, what we do is we check the sign of f of x1. ठीक है. We check the sign of f of x1. एक मिनट.
Yes. So what I was telling, we find x1 by using the formula a plus b divided by 2. After finding x1, we check the sign of f of x1, whether it is greater than 0 or it is less than 0. That means basically what we are checking, x1 lies on the same side where a lies, or x1 lies on the same side where b lies of the curve. कर्व का लेफ्ट में है कि कर्व का राइट में है, as per the diagram what we have in front of us. So from the diagram we can see कि x1 कर्व का राइट में है, that means it is on the side of b. It is on the side of b means in this diagram you will see कि f of x1 नेगेटिव होगा करके, ठीक है, f of x1 नेगेटिव होगा. So what we do, ये अपना फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गया. For the second iteration what we do is, since we know कि f of x1 and f of b are of same signs, okay, f of x1 and f of b are of same signs, so we will replace b with x1 for the second iteration. ठीक है, we will replace b with x1 for the second iteration. Okay. Fine. If this one is clear, we calculate x1 by using the formula a plus b divided by 2. Then we check the sign of f of x1, whether it is same as f of a or it is same as f of b. That means हम लोग चेक कर रहे हैं कि x1 कर्व के कौन से साइड पे है. Is it on the side where a was there or is it on the side where b was there? जो साइड पे है वो वाले पुराने पॉइंट को अपने को रिप्लेस करना है. सो इन द डायग्राम यू कैन सी कि योर x1 is on the right of the curve, so f of x1 is negative. f of a, f of b दोनों में से कौन नेगेटिव था? f of a, f of b दोनों में से कौन नेगेटिव था? F of b. f of b. So for the second iteration we will replace b with x1. ठीक है, for the second iteration we will replace b with x1 and we will continue the same process. ठीक है, we will replace b with x1 and we will continue the same process. That means what will be the formula for my x2? Formula for my x2 will be a plus x1 divided by 2. ठीक है, formula for x2 will be a plus x1 divided by 2. After calculating x2, we repeat the process. We see कि x2 lies on the same side where a was there, or x2 lies on the same side where x1 was there. Okay, and we continue in the same process till either we reach to the exact root, okay, or we reach to the required accuracy. Exact root आना is very difficult because the polynomials which we will be using for finding the root, they are the polynomials जिसका root easily find नहीं होता है by the techniques which we know till now. That is the reason कि we are going for this iterative method. So exact root तो आना बहुत मुश्किल है. So what we do is we continue the process. Till the required accuracy is obtained. Okay, till the required accuracy is obtained or the number of iterations are done. That means अगर अपने को बोला है कि
परफॉर्म 4 आइट्रेशंस, 4 बार x4 तक कैलकुलेट करो, तो अपने को x4 तक कैलकुलेट करके रुक जाना है। या तो फिर इफ इट सेज फाइंड द रूट करेक्ट अप टू द गिवन एक्यूरेसी, तो वो उस हिसाब से करना है। सी यहाँ पे थियरी क्लास में वी विल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस एज योर टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है, we will be concentrating on the number of iterations, that means 3 steps 4 steps करके we will stop. हाँ, but in your practical, the one which you will be doing it in a Scilab, वहाँ पे the teacher may tell you to repeat till the required accuracy is obtained. ठीक है, till the required accuracy is obtained, क्योंकि वो तो तुम प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो लूप में डाल दोगे तो वो रिपीट होते रहेगा टिल दैट टर्मिनेशन कंडीशन इज satisfied. बट थियरी क्लास में दैट इज नॉट feasible. It may take 10 iterations, it may take 20 iterations depending on your sum. So here what we will be doing is we will concentrate on the number of iterations. So I hope somewhat the thing is clear about your bisection method. See, this is what is the actual method which I had just spoke about. First step is to find A and B such that f of A and f of B are of opposite signs. ठीक है, ये तो अपना theoretically हो गया opposite signs. Programming point of view, how do the computer understands कि the numbers are of opposite signs? तो उसका कंडीशन क्या है, f of b into f of a should be negative. Okay, because we have learned product of two positive numbers is what? What is the product of two positive numbers? Positive, greater than 0. Product of two negative numbers? Negative, lesser than 0. Less than 0. लेस देन 0. एक तो लड़की का आवाज था और एक लड़के का आवाज था, तो आई थिंक लड़की कौन, स्वीटी थी कि इफत थी, आई डोंट नो हु सेड दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. No side with Sir, it's positive. Sir, positive होगा. Sorry. So Okay. सिखा दो ना, minus minus plus हाँ, plus minus plus. minus plus, good, वही. So see, in this case what will happen if the numbers are positive, तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. if both the numbers are negative, तो भी तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. that means if the numbers are of same sign, okay, if the numbers are of same sign, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. बट if the numbers are of same, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा. that means it will be less than 0. so that is basically the condition which we use for your coding purpose. okay, f of a into f of b is less than 0. yes, that means they are of opposite sides. so first step is to find a and b such that f of a and f of b are of opposite sides. Second step, we calculate x1 by using the formula a plus b divided by 2. ये जो second step है, that basically is your first iteration. ठीक है. Third step, replace a with x1. Replace a with x1 if f of a into f of x1 is greater than 0. That means what it says, replace a with x1 if f of a and f of x1 are of same sign. ठीक है, और replace b with x1 if f of b and f of x1 are of same sign. That means what we discussed, replace a with x1
if x1 is on the side where A lies with respect to the curve, replace B with x1 if x1 lies on the same side as of B with respect to the curve. ये तो explanation point of view हो गया. Working point of view के लिए we have to replace A with x1 if f of A and f of x1 are of same size, or replace B with x1 if f of B and f of x1 are of same size. Continue the process till the number of iterations are performed or the required accuracy is attained. ठीक है, continue the process till the required number of iterations are performed or the required accuracy is attained. ठीक है, these are the 4 steps involved in your bisection method. 50% is clear. अगर 50% clear है तो we are on the right track. I will not expect more than 50% at this stage. 50% भी clear है तो बाकी 50% examples में हो जाएगा clear. Yes, sir. हाँ सर. Okay, so fine, we will start solving the example. The first example says find the positive root of x cube minus x equal to 1. Perform 4 iterations. 4 iterations मतलब x4 तक अपने को करना है. ठीक है, perform 4 iterations मतलब x4 तक अपने को करना है, क्योंकि first iteration is your x1, second iteration is your x2, third iteration is x3 and fourth iteration is x4. So 4 iterations means अपने को x4 तक का calculation करना है basically. So what we do is we start with the sorry, we consider. Sir, what is the meaning of iteration? Iterations मतलब steps. Okay, sir. एक step को कितनी बार अपने को repeat करना है. Okay, sir. That is what you can say it's an iteration. See यहाँ पे ऐसे सेट के 4 iterations मतलब अपने को x1 से स्टार्ट करके x4 तक का वैल्यूज कैलकुलेट करना है. तो ये जो x1, x2, x3, x4 जो मिलेगा that will be your iterations. That means it is an iterative method. वो मेथड तुमको एक पर्टिकुलर स्टेप रिपीट करके मिलेगा. सिंपल वर्ड्स में ये उसका मीनिंग है कि जो मेथड में एक पर्टिकुलर स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज एन आइटरेटिव मेथड. जैसे अपना लिफ्ट होता है, लिफ्ट ऑल्सो फॉलोज द आइडिया ऑफ दैट लूप, सो इट ऑल्सो फॉलोज द आइडिया ऑफ दैट आइटरेशन. आइटरेटिव होता है ना, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, वैसा. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, so we consider f of x as x cube minus x minus 1. Okay, we consider f of x as this polynomial. Okay, x cube minus x minus 1. That means my f of x is equal to 0. My f of x, which is x cube minus x minus 1, is equal to 0. This step is clear कि x cube कैसा आया. जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको यूज करके हम लोग ये f of x कंसीडर कर रहे हैं. Because we are supposed to find the root of the polynomial, that means we are supposed to find out the value of x which satisfies the equation f of x equals to 0.
कल हम लोग ने डिस्कस किया था ना डिटेल में रूट का, तो जब वो वैल्यू डालोगे तो तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो f of x is x cube minus x minus 1. Okay, so we are supposed to find out x such that f of x is equal to 0. Now say it's a cubic polynomial. Cubic polynomial का रूट फाइंड करने के लिए one technique is you go with your synthetic division. Okay, you go with your synthetic division. But यहाँ पे you will not get the root using synthetic division. The reason is synthetic division will only give you integer roots. Okay, synthetic division will only give you integer roots. वो rational roots नहीं देता है. And if you remember, you have learned one formula. Product of the roots is your constant term, irrespective of the sign. I am talking about magnitude terms में. Product of the roots is nothing but the constant term irrespective of your sign. तो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो उसका अगर इंटीजर रूट्स हुआ तो आइदर +1 या -1 होना चाहिए, तभी तुमको कांस्टेंट टर्म 1 आएगा ना, ठीक है। तो यू कैन चेक, अगर तुम x को 1 डालो ये पॉलिनोमियल में तो तुमको 0 मिल रहा है, f of x में x को 1 ले लो तुमको 0 मिलेगा। No, sir, we will get 1 now. Right, we will not get 0. That means 1 is not a root. X को -1 ले लो, will you get 0? You will not get 0. That means -1 is also not a root. तो जो अपने को सिंथेटिक डिवीजन से पॉसिबिलिटी था +1 -1, वो तो यहाँ पे रूट हो नहीं रहे. That means this polynomial have rational roots or you can say real roots. Okay, real roots है तो वो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व नहीं होता है. You cannot find real roots using synthetic division. Real मतलब डेसिमल वाला, इंटीजर रूट से मिलेगा सिंथेटिक डिवीजन से. तो यहाँ पे वी कैनॉट अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए अपने पास तो एक ही टूल है सिंथेटिक डिवीजन का, या तो दूसरा है फैक्टराइजेशन का. यू कैन सी कि ये फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा. दैट मींस व्हाटएवर टूल व्हिच वी नो फॉर फाइंडिंग द रूट्स, उसको यूज करके ये पॉलिनोमियल का रूट्स नहीं मिलेगा अपने को. दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर दिस अप्रोक्सीमेट मेथड्स. अप्रोक्सीमेट मेथड्स मतलब the methods which will give us the approximate root or approximate answer for the given question. So यहाँ पे we are solving this by bisection method. So what we do is we first take x equal to 0 and we check what is f of 0. What will be f of 0? Tell. What will be f of 0? -1. -1, which is negative, right? What is f of 1? 0. How come 0? अभी तो हमने बोला f of 1 0 नहीं होता है. -1. ये भी -1 होता है. ओके, नाउ सी f of 0 भी -1 है, f of 1 भी -1 है. दैट मींस 0 and 1 both lies on the same side of the curve. ठीक है, 0 and 1 both lies on the same side of the curve. तो अपना पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है. अपना फर्स्ट कंडीशन क्या है, a and b फाइंड करना है such that both of them are of opposite signs. तो अपना 0 और 1 के लिए वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो वी गो फॉर f of 2. अभी f of 2 यू कैन सी कितना मिलेगा 5. f of 2 5 मिला. नाउ टेल मी
f of 1 -1 है which is negative, f of 2 5 है which is positive, right? f of 0 भी नेगेटिव है बट हम लोग 0 नहीं कंसिडर करेगा क्योंकि वो दोनों के बीच में अपने को 1 भी मिल रहा है ना. So what we do is we consider the values such that वो consecutive values है. ठीक है. So f of 1 is negative, f of 2 is positive. f of 1 is negative, f of 2 is positive. So what we do is we take a equals to 1, b equals to 2. Okay, we take a equals to 1, b equals to 2. Why? Because we have got 2 points such that f of 1 is negative and f of 2 is positive. That was the first step to find a and b such that f of a and f of b are of opposite signs. तो opposite signs मिल गया. तो a को we take it as 1, b को we take it as 2. This much is clear. Yes, sir. Sir. After getting a and b, we calculate our x1 using the formula सर कोई तो बुला रहा है. a plus b divided by 2. Yes, कुछ डाउट है? सर कोई तो सुप्रीत आवाज कुछ- दिया आपको. कोई तो आवाज दिया आपको इसलिए. सुप्रीत कुछ डाउट है? नहीं सर मुझे नहीं है. कोई तो आवाज दिया था सर बीच में सर. अच्छा, okay. So we find x1 by using the formula a plus b divided by 2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a plus b, that is 1 plus 2 divided by 2. Don't get confused between -1 5. a मतलब 1 है, b मतलब 2 है. -1 f of a है, 5 f of b है. बट कैलकुलेशन में हम लोग a और b का वैल्यू ले रहे हैं, f of a और f of b नहीं ले रहे. ठीक है. तो my x1 will be 1.5. After getting my x1, we will calculate the value of f of x1. ठीक है. We calculate the value of f of x1. So in this case, what is f of x1? f of x1 is f of 1.5. Okay, it is f of 1.5. That is 1.5 का cube minus 1.5 minus 1. मेरा जो पॉलिनोमियल है उसमें मैंने x को 1.5 सब्स्टिट्यूट किया. तो 1.5 का क्यूब minus 1.5 minus 1. Being the first sum, I will advise कि वो अच्छे से उसको सॉल्व करते. Then later on, after solving one or two examples, I will tell you that there are some steps which can be avoided, but not at this moment. So 1.5 का क्यूब मिलेगा 3.375 minus 2.5 minus 1.5 minus 1. तो आते हैं 0.875. Okay, 0.875, which is positive. Correct, which is positive. अभी हम लोग को किसका साइन पॉजिटिव था? f of a का कि f of b का? F of B. f of b, that means f of 2. So f of 2 and f of x1. f of 2 and f of x1 are of same signs. ठीक है. f of 2 and f of x1 are of same signs.
So they are same signs. Therefore, replace B. Replace 2. Bracket में I'll write B with 1.5. Bracket में I'll write x1. Okay, replace B with x1. That is replace 2 with x2. Okay. So we get replace 2 with 1.5. That is B with x1. क्योंकि f of 2 and f of x1 are of same size. तो अभी x2 का फॉर्मूला क्या होगा? x2 का फॉर्मूला होगा a plus x1 divided by 2. ठीक है, x2 का फॉर्मूला होगा a plus x1 divided by 2. तो a का वैल्यू कितना था? 1. x1 का वैल्यू है 1.5 divided by 2. So this implies मेरा जो x2 का वैल्यू है that turns out to 1.25. Right? My x2 turns out to 1.25. Is this x2 का calculation clear? Yes, sir. Okay. So this is how we calculate x2. Now we will calculate f of x2. So f of x2 मतलब f of 1.25. Now you tell me what is the value of f of 1.25? Tell me what is the value of 1.25? minus 0.29. 2968. 69. हाँ 6 नंबर पर राउंड ऑफ कर. Minus 0.29. Minus 0.2969. Yes, it is minus 0.2969. F of x2 is minus 0.2969. So now what you can observe? Now you can observe कि तुम्हारा f of x2 नेगेटिव है. x2 में हम लोग ने a और x1 यूज किया था, राइट? x2 का कैलकुलेशन में हम लोग ने a और x1 यूज किया था. तो किसका साइन सेम है? f of a का साइन सेम है कि f of x1 का साइन सेम है? With f of x2, with f of x2 किसका साइन सेम है? f of a का कि f of x1 का? F of A. F of a. So we will write f of a and f of x2 are of
same signs. ठीक है, f of a and f of x2 are of same sign. So replace a with x2. Replace a with x2. Is it clear? कि पहले हम लोग b को रिप्लेस किया था, अभी हम लोग a को रिप्लेस कर रहे हैं. Replace a with x2. So what is my x3? Now tell me x3 का फॉर्मूला क्या होगा? सर अगर वो पॉजिटिव आता x2 तो फिर से b को रिप्लेस करते हैं क्या? नहीं, Instead तो of A? x1 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि x2 का फॉर्मूला जो है दैट इज a plus x1 upon 2. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो आप मीटिंग का परमिशन चेंज कर दो ना, वो मेरे को कोई किक कर रहा है बार बार. मीटिंग का परमिशन एक मिनट. अच्छा ओके. आज मेरे को yesterday I was not able to change, इसके लिए मैंने आज कुछ किया ही नहीं. मेरे को लगा कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ सेटिंग्स किया रहेगा करके, बट टुडे आई एम गेटिंग. ठीक है, मैंने कर दिया चेंज. थैंक यू सर. ओके. हाँ ऐश्वर्या, सो इज इट ओके नाउ? सी, अगर f of x2 पॉजिटिव होगा तो वी विल रिप्लेस x1 विद x2, क्योंकि x2 का कैलकुलेशन में वी आर यूजिंग a plus x1. तो b तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया था ना x1 से. Yes sir. If f of x2 would have been greater than 0, then we would have replaced x1 with x2. सर आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो कि अगर वैसा आया तो क्या आएगा? मतलब आपने इधर ऊपर फॉर्मूला जैसा किया है ना, वैसे लाइक a प्लस बी अपॉन 2 था ना इनिशियल फॉर्मूला, एंड देन आप रिप्लेस करते गए ना, तो अगर ये पॉजिटिव आया तो उसका कैसा आएगा? वही ना. सी, अभी x1 का फॉर्मूला क्या था? a plus b upon 2. Yes sir. We got our x1 as 1.5. Yes. Then we calculated f of x1. Yes. f of x1 पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला? Positive. f of x1 पॉजिटिव मिला, राइट? Yes. तो नाउ इनिशियल इसमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1 and 2 स्टार्टिंग पॉइंट था. Yes. 1 and 2 में से f of 2 पॉजिटिव था. Yes. अभी अपने को f of x1 पॉजिटिव मिला. Yes. तो हम लोग 2 को 1.5 से रिप्लेस किया. Yes sir. Because they are of same sign. हाँ. This much is okay? Yes sir, that's perfect. हाँ. Now we calculate x2 by considering, see, a plus b upon 2 का ही फॉर्मूला दिमाग में रखो, but what we are telling, b को हम लोग x1 से रिप्लेस कर रहे हैं. Yes sir. इसके लिए हम लोग ने वो x2 का फॉर्मूला लिखा a plus x1 upon 2. Yes. Yes. It is parallel to what we have done, a plus b upon 2. Yes sir. Right? So we are getting x2 as 1.25. Yes. And we calculated f of x2, Yes. which we got it as minus 0.2969. Yes. now ये f of x2 का नेगेटिव वैल्यू मिला. x2 में हम लोग ने किसको किसको यूज किया था? a b को यूज किया, a नहीं. x1 को यूज किया कि b x1 को यूज किया? AX1. x1, राइट? Yes. तो जो हम लोग ने x2 में यूज किया उसका साइंस अपने को f of x2 के साइन के साथ चेक करना है. Okay. मतलब Okay sir. x2 में भी यूज a and x1, तो हम लोग f of a and f of 2 का साइंस को चेक करेगा, f of x1 and f of x2 का साइंस को चेक करेगा. Okay sir. Right? समझा. तो here we get f of a नेगेटिव था and f of x2 भी नेगेटिव मिल रहा है. तो we get f of a
and f of x2 are of same signs. So we replace a with x2. So Yes, after sir. replacing a with x2, now when we calculate x3, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैन एनीवन टेल x3 का फॉर्मूला क्या होगा? x2 plus x2 plus x1 b upon 2. Sorry, two people were telling at the same time, so I was not able to hear it properly. One person at a time. x2 plus x1 upon 2. x2 plus x1 upon 2. Aishwarya, is this clear to you? x3 का formula? Yes, sir. Yes, sir. It is clear. Thank Okay, you. so x3 is x2 plus x1 upon 2. Tell me, x2 का वैल्यू कितना है? 1.25. 1.25. 1.2. Very good, very good. And x1 का वैल्यू 1.5. 1.5. You would be wondering कि दोनों वैल्यूज वहां पे सामने फिर भी सर क्यों पूछ रहे हैं? There is a reason. See, after repeating also, when we solve the sums, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं? वो 1.25, 1.5 की जगह पे we take the values as minus 0.2969. वो बहुत बार होता है वो मिस्टेक्स इसके लिए. So I suppose now it would be clear. Now tell me फाइनल x3. आंसर तो ये आया ना इसका x2 फाइनल आंसर तो -0 आया ना. तो फाइनल आंसर मींस what is the meaning of your final answer? मतलब जो अभी आपने उस x2 जो में -0.2969 मिला वो बोल रहे हो? हाँ. वो फाइनल आंसर नहीं है, वो तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू है at 1.25. ओके, दैट इज नॉट द फाइनल वैल्यू. अभी अपने को 4 आइटरेशंस करना है तो अपने को x4 तक जाना है. ये तो इंटरमीडिएट स्टेप है. ये तो कैसा हो गया? सपोज अगर तुमको 25th फ्लोर पे जाना है, यू आर स्टेइंग एट 25th फ्लोर इन अ बिल्डिंग इन अ टावर ऑफ 30 फ्लोर्स. फॉर सम रीजन तुम्हारे टावर में 4 लिफ्ट है, चारों लिफ्ट बंद है करके. ओके, बट देयर इज सम अर्जेंट वर्क और तुमको घर पे जाना ही जाना है. तो तुम जब क्लाइंब करोगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यू विल स्टॉप इन बिटवीन टू रिगेन योर ब्रेथ. तो ये जो जब तुम रुकते हो दैट इज योर इंटरमीडिएट स्टॉपिंग. तो ये जो f of x2 और ये सब है वो अपना इंटरमीडिएट वैल्यूज है, वो फाइनल आंसर नहीं है. तो सब मतलब इसका यूज क्या निकालते हैं? जो अभी अपन 1.25 पे रुक जाते हैं तो इसका यूज क्या आगे का निकालते हैं? माइनस वो क्यों कैलकुलेट किया वो पूछ रहे हो? हाँ, सी अपने को 4 आइटरेशंस करना है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 4 आइटरेशंस. हाँ. That means अपने को x4 तक कैलकुलेशंस करना है. हाँ बराबर. राइट, तो टू रीच टिल x4, x2 के बाद अपने को ये भी तो चेक करना है ना कि x3 में अपने को किसको चेंज करना है, किसको रिप्लेस करना है. See now if you see the formula for your x2, formula for x2 क्या था? a plus x1 upon 2, right? हाँ सर. तो जब x3 का कैलकुलेशंस करना है तो आइदर अपने को a को रिप्लेस करना है या तो x1 को रिप्लेस करना है. करेक्ट? x3 का कैलकुलेशन में आइदर अपने को a को रिप्लेस करना है या x1 को रिप्लेस करना है. तो किसको रिप्लेस करेगा वो हम लोग रैंडमली तो डिसाइड नहीं कर सकता ना. यू कैन टेल कि मेरे को a पसंद नहीं है तो मैं a को रिप्लेस कर दूंगा, मेरे को x1 पसंद नहीं है तो मैं x1 को रिप्लेस कर दूंगा. दिस रैंडम वर्क विल नॉट, इट इज नॉट अलाउड. तो किसको रिप्लेस करना है वो चेक करने के लिए अपने को f of x2 लगेगा. अच्छा ठीक है. हेलो सर. यस सर फोर्थ लाइन वापस एक बार बताओ ना. f of 2 and f of x are of same sign वाला. f of x2 वाला
हाँ सर, फोर्थ लाइन जो है ना ऊपर से, f(2) एंड f(x) आर ऑफ सेम साइन, देयरफॉर रिप्लेस 2b वाला, वो वाला। Okay. See, we started with a equals to 1, b equals to 2. Correct? यस सर। हाँ, अभी a को 1 लिया और b को 2 लिया, क्यों? क्योंकि f(1) नेगेटिव था, f(2) पॉजिटिव था, तो अपने को ऑपोजिट साइंस मिला। यस सर। तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वी कैलकुलेट अवर x1 यूजिंग द फॉर्मूला a plus b divided by 2, राइट? तो उससे अपने को x1 का वैल्यू मिल गया। देन वी कैलकुलेटेड व्हाट इज f of x1, करेक्ट? f of Yes, x1 कितना मिला? 0.875. 0.875, करेक्ट? नॉट इज 0.875 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। सो द सेम थिंग आई विल टेल कि अपने को किसको रिप्लेस करना है, ए को या बी को, वो डिसाइड करने के लिए अपने को f of x1 का साइन लगेगा। यस सर। तो f of x1 पॉजिटिव है, f of a एंड f of b दोनों में से कौन पॉजिटिव था? f of x1 पॉजिटिव, f of a एंड f of b दोनों में से कौन सा पॉजिटिव था? एफ ऑफ बी सर। f of b, f of b मतलब f of 2। यस तो सर। f of 2 पॉजिटिव है, f of x1 भी पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई वी से कि f of 2 एंड f of x1 आर ऑफ सेम साइंस। तो जो सेम साइन है उसको अपने को रिप्लेस करना है। दैट मींस b एंड x1, b को हम लोग रिप्लेस करेगा x1 से। सर व्हाट इफ अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अगर सेम साइन का रहेगा तो किसको रिप्लेस करने का? f of a और f of b सेम साइन का रहेगा तो अपना प्रॉब्लम चालू ही नहीं होगा ना। ओके सर। सी, अपना प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा? जब अपने को स्टार्टिंग में दोनों ऑपोजिट साइंस का मिलेगा तब। ओके सर। अदरवाइज वो सी, आई अगेन गो बैक टू द डायग्राम, नॉट दिस वन, ये वाला डायग्राम में। सी, ये वाला डायग्राम में तुम डायग्राम देख के तो बता सकते हो कि उसका रूट नहीं है, करेक्ट? उसका रूट क्यों नहीं है? क्योंकि वो तुम्हारा एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा है, राइट? अभी ये सेकेंड Yes, sir. डायग्राम में यू कैन सी कि तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स। एक सेकेंड। सर योर वॉइस इज लैगिंग।
Sorry, yes, tell me. सर क्या दो you पॉइंट are पे telling? 2 पॉइंट पे कट हो रहा है सर. हाँ हाँ, 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, राइट. एक वो Yes, जो ब्लू वाला अमीबा में है, आई विल नॉट टेल इट एज अ सर्कल क्योंकि वो सर्कल नहीं है. तो Yes, ब्लू sir. वाला अमीबा है और रेड वाला अमीबा है, Yes, sir. करेक्ट. अभी सी ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है उसमें यू कैन सी कि तुम्हारा कर्व नेगेटिव पार्ट में भी है और पॉजिटिव पार्ट में भी है. दैट इज बिलो एक्स एक्सिस भी है एंड अबव एक्स एक्सिस भी है, राइट. और वो कंटिन्यूअस है. तो वो सी अभी तुम राइट साइड का कर्व को कंसीडर करो, राइट ऑफ वाई एक्सिस. तो नीचे से ऊपर जब जा रहा है तुम्हारा कर्व तो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है वो. Yes, sir. वहां पे तुमको एक गारंटी मिल रहा है ना कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्स एक्सिस को कट करके ही जाएगा करके. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, वो जंप नहीं मार सकता है, डायरेक्ट नीचे से ऊपर जंप नहीं मार सकता है. ओके, वो कंटिन्यूअस है तो मेरे को एक्स एक्सिस को कट करके ही वो कर्व को ऊपर जाना है. अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता तो फिर वो वाला हो सकता है कि वो इधर से उधर जंप मार के चले गया करके, करेक्ट. सी इट्स Yes, लाइक sir. हम लोग जब ये करते हैं, व्हाट यू से, रोड पे जब हम लोग चलते हैं, अगर रोड पे खड्डा आ गया तो क्या करते हैं हम लोग? साइड से जाएंगे सर. या तो साइड से जाएगा या तो ज्यादा ईगरनेस रहेगा तो उसको जंप करके चले जाते हैं. Yes, sir. अब तुम लोग साइड से जाओगे तो तुम्हारा और ग्राउंड का लेवल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, खाली तुम उसका डायरेक्शन चेंज करके जा रहे हो. तुम कभी भी पूरा हवा में नहीं होगा. बट व्हेन यू आर जंपिंग, जब तुम वो पॉटहोल को जंप करोगे तो फॉर सम सेकेंड्स देयर विल नॉट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन यू एंड द ग्राउंड, राइट. तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, बीच में ब्रेक आ गया, जंप हो गया, तो तुम्हारा और ग्राउंड का कांटेक्ट लूज हो गया. तो वो जब वो पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस कर्व है तो ग्राफ स्मूथ होगा, ग्राफ में जंप वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ब्रेक्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. Yes, sir. तो ये जो कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी है, दैट ओनली बेसिकली गिव्स अस द अश्योरेंस कि जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको एक्स एक्सिस को कट करके ही जाना है, बिना कट किए वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकते. एंड वाइस वर्सा, बिना कट किए वो ऊपर से नीचे भी नहीं आ सकते. ठीक है. Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी, इज दिस क्लियर? मतलब अभी shall we move ahead? Yes, sir. And the one thing which you were asking कि अगर f of a and f of b दोनों सेम साइन का होगा तो सी अपना जो स्टार्टिंग का कंडीशन है वो वही है ना कि दोनों डिफरेंट साइंस का होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, नो? Yes, sir. तो अपना कंडीशन ही वही है कि f of a and f of b should be of opposite साइन. तो अगर सेम साइन का है तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते उसको. Okay, sir. समझा. ओके, तो फाइन. तो फर्स्ट स्टेप में हमने b को रिप्लेस किया x1 से. क्यों? बिकॉज f of b एंड f of x1 were of सेम साइंस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था. सपोज तुम्हारा f of x1 नेगेटिव होता. ओके, नाउ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, टेल मी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग f of x1 ग्रेटर देन 0, अगर अपने को f of x1 लेस देन 0 मिलता तो व्हाट वी वुड हैव डन?
Instead of B, we would have replaced it with A. Right. In the So next instead of replacing 2 with x1, we would have replaced 1 with x1. Okay. Okay. So now, shall we go to the calculation of x3 or some more explanation is required? नहीं सर, जाते हैं x3 पे. Okay. Ahmed, Sheikh Ahmed, you have some doubt? You have raised your hand. हाँ बोलो. सर यहाँ सेकेंड लाइन में आपने ए को 1 लिया बिकॉज वो F1 का वैल्यू माइनस आया और F0 वैल्यू भी माइनस आया. सर आप क्यों लिया? बीच में तुम्हारा आवाज कट गया. ए को 1 लिया क्योंकि f(1) -1 मिला. ठीक है. उसके आगे क्या बोला तुमने? हाँ सर, F0 का भी वैल्यू -1 ही है, तो सर आपने 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया? सी हम लोग 0 और 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों का साइन सेम है. करेक्ट. 1 और 2 का साइन डिफरेंट आया. योर पॉइंट इज करेक्ट. 0 और 2 भी ले सकते हैं हम लोग, बट हम लोग जब ये ए और बी सिलेक्ट कर रहे हैं, सी उसका रीजन क्या है? अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 आइटरेशंस परफॉर्म करना है अपने को. यस. राइट. अगर मैं 0 और 2 से स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे को जो x1 का वैल्यू है वो 1 मिलेगा. चेक करो. a को 0 लिया, b को 2 लिया, तो x1 क्या मिलेगा? 1. तो एक आइटरेशन अपना वेस्ट हो रहा है वहां पे. ठीक. ये चीज तुम लोग प्रैक्टिकल में करोगे ना, जहां पे तुमको रुकना कब है? टिल यू रीच टू द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी. ओके. वो वाला पार्ट में अगर तुम्हारा प्रोग्राम 2 आइटरेशन ज्यादा भी कैलकुलेट कर रहा है, इट डजंट मैटर. बट यहाँ पे when we have the restrictions on the number of iterations, so what we have to do is, हम लोग जनरली ए और बी को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होगा करके. ओके. सो दैट व्हाट हैपेंस कि अपने को डेफिनेटली पता है कि 1 और 2 के बीच में ही रूट है, तो अपना उतना आइटरेशंस सेव हो जाएगा करके. तो मतलब अगर सी टू बी मोर प्रिसाइज, तुम 0 और 2 लेके चालू करोगे ना, तो जो आंसर तुमको x2 के लिए मिलेगा वही आंसर अभी अपने को x1 के लिए मिल रहा है. ठीक है. तो 0 और 2 से चालू करोगे तो तुमको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि 5 आइटरेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर तुमको 1 और 2 में 4 आइटरेशंस के बाद मिलेगा. इसके लिए अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वी से कि हम लोग वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेके चालू करेंगे करके, 0 और 2 से चालू नहीं करेंगे. ठीक है. यस सर. See, इसमें now when you have raised that question, I would like to add one more thing. तुम x को -1 ले लो. स्टार्टिंग x को -1 ले लो. टेल मी f of x, f of -1 क्या आएगा? What sir? You take x as -1. -1 सर. तो f of -1 कितना मिलेगा? -1 ही सर. -1, राइट. तो f of -1 भी नेगेटिव है, तो you can start with -1 in 2 also. But again the same problem. जब -1 और 2 से स्टार्ट करोगे तो वो तुम्हारा जो रेंज है वो बड़ा है. 1 और 2 छोटा सा रेंज है. और अपने को जब हम लोग कॉन्सिक्यूटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे सैटिस्फाइंग द कंडीशन, तो अपने को पता है कि वो रूट 1 और 2 के बीच में ही है. ओके. और जब हम 0 और 2 से चालू करते हैं
तो भी हम लोग सी 0 से चालू करेंगे तो भी हम लोग शिफ्ट तो 1 और 2 पे ही हो रहा है एक स्टेप के बाद, क्योंकि मेरा x1 वहां पे 1 आएगा अगर मैं 0 और 2 से चालू करूंगा तो इसके लिए जब हम लोग क्लास में नंबर ऑफ आइटरेशंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, एट दैट टाइम अपना जो स्टार्टिंग वैल्यूज होगा वो जनरली हम लोग कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ही लेगा, सो दैट वो रेंज के बाहर हम लोग जाएगा ही नहीं करके, वो रेंज के बीच में ही अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके, नाउ वी गो टू x3। तो x3 का फॉर्मूला था x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा वैल्यू? टेल मी। 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.75. 1.375. 1.375. Very good. 1.375. Now we will calculate what is f of x3. That is f of 1.375. So you tell me f of 1.375 कितना आता है? 0.2246. 0.2246. Okay, let me check. 0.2246. Okay, very good. So 0.2246. ये 0.2246 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. Positive. This is greater than 0. Okay. Now tell me किसका साइन सेम है? f of x3 का साइन किसके साथ सेम है? X1. x1. Okay. So f of x1 and f of x3 are of same signs. Is it clear to others? f of x1 and f of x3 are of same signs क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो टेल मी किसको हम लोग किससे रिप्लेस करेगा? सर यहाँ पे B को कंसिडर नहीं करते। b तो ऑलरेडी छोड़ दिया ना हमने। See, I'll tell you one thing. एक मिनट, अगर लेट मी सी, अगर मेरे को डायग्राम ड्रॉ करने मिलेगा ना, सी ये मेरा नंबर लाइन है। ओके, पहले हम लोग ने कहां से स्टार्ट किया? अपना स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? A और B ना सर? हाँ, ए और बी, राइट। तो ए और बी मतलब होता 1 और 2। हमने 1 से स्टार्ट किया और 2 से स्टार्ट किया, 1 और 2 से स्टार्ट किया, तो ये अपना ए और बी हो गया। ओके, देन व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेटेड x1। x1 कितना मिला? 1.5. 1.5. That means this 1.5 will be somewhere here. Okay, I'll draw it here. ये मेरा 1.5, that is my x1। ठीक है, अभी बोलो हमने किसको पहले किससे रिप्लेस किया था? हमने 1.5
0. I'll just scroll that part so you can just see this. Now see, this is the part of your answer. हमने किसको किससे रिप्लेस किया था? B को X1 से B को X1 से रिप्लेस किया, राइट? Now what is the meaning कि हमने B को X1 से रिप्लेस किया? That means ये जो B है उसको हम लोग ने इरेज ही कर दिया ना. See, when you are telling कि हमने B को X1 से रिप्लेस किया, that means तो B तो ऑलरेडी चले गया तुम्हारा. Yes sir. So now you are doing calculations with which numbers? A and X1. A and X1. Okay. तो A and X1. तो A and X1 के साथ तुमने जब कैलकुलेशन किया तो तुमको आंसर कुछ आया 1.25, राइट? हाँ 1.5 आया Yes, actually. 1.2. अब 1.25 बरोबर 1.25 ये तुम्हारा X2 हो गया, राइट? Yes sir. ओके. अभी तुमने किसको रिप्लेस किया किससे? X2 का कैलकुलेशन के बाद किसको रिप्लेस किया? A को A को किसके साथ X2 रिप्लेस से किया? X2 से. That means when you are telling कि A को X2 से रिप्लेस किया, मतलब ये A का तुमने डिलीट कर दिया ना, ओवरराइट हो गया ना इन योर कंप्यूटर का लैंग्वेज में. जो A का वैल्यू था वो X2 का वैल्यू से ओवरराइट हो गया, करेक्ट? Yes sir. So now you are playing with which two numbers? X1 और X2. X1 and X2. X1 and X2 के साथ. तो इसको यूज करके अपने को X3 मिला which was 1.375 Yes and sir. then we calculated f of X3 which turned out to 0.2246. तो अभी जब हम लोग कंपैरिजन करेगा f of X3 का, किसके साथ करेगा? A और B के साथ करेगा कि जो नंबर्स अभी अपने को दिख रहा है उसके साथ करेगा? जो दिख रहा है उसके साथ. हाँ, तो कौन से नंबर्स दिख रहे हैं अभी? अभी X1 X2 दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे. Yes sir. That means तुम f of X3 का जो साइन है वो f of X1 के साथ कंपेयर करेगा एंड f of X2 के साथ कंपेयर करेगा. अभी तुम्हारा A और B पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है? तुम्हारा A और B पिक्चर में ही नहीं है अभी. अभी कौन है पिक्चर में? एट प्रेजेंट पिक्चर में X1 X2 X3 है, ठीक है? और X3 तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो अपने को किसको निकालना है? किसको निकालना है? वो है X1 को निकालना है कि X2 को निकालना है, वो डिसाइड करना है. X2 को निकालना है. कैसे X2 को निकालोगे? f of X1 एंड f of X3 का साइन सेम है ना. X1 को निकालेंगे. हाँ, तो X1 को निकालेंगे. सो वी विल रिप्लेस X1 with X3, ठीक है? रिप्लेस X1 with X3. तो जब X1 को रिप्लेस करोगे तो अभी X4 का फॉर्मूला क्या होगा? X2 plus X3 by 2. X2 plus X3 डिवाइडेड बाय 2. तो वो मेरा X2 कितना है? 1.25. X3 है 1.375 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा मेरे को? 1.3125. 1.25 प्लस 1.375, हाँ 1.3125. ये मेरा X4 का वैल्यू मिलेगा. अभी ये X4 का वैल्यू मिलने के बाद we will not calculate f of X4, ठीक है? we will not calculate f of X4. क्यों? क्योंकि अपने को 4 आइटरेशंस करना था. That means X4 का वैल्यू मिल गया
आगे क्या है वो अपने को नहीं करना है. So the root of f of x after 4 iterations is 1.3125. ये अपना आंसर है. तो ये अपना टर्मिनेशन कंडीशन था 4 iterations का. That means x4 अपना स्टॉपिंग पॉइंट है. वो अपने को तो स्टॉप करना है, आगे जाना नहीं है, तो f of x4 कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. If it was said कि x5 भी कैलकुलेट करना है, then f of x4 was required, but अपने को f of x4 required नहीं है, तो we will not calculate that. ठीक है. Now tell me, अभी क्या स्टेटस है? 50% से गाड़ी आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थोड़ा आगे बढ़ा है बस, पूरा थोड़ा 100 बढ़ा नहीं तो? हुआ. हाँ, तो कितना 65 हुआ कि 75 हुआ? 65 पकड़ लो सर. 65 तक हुआ. ओके, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. आगे बढ़ा तो फिर और एक सम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हो जाएगा क्लियर, कुछ प्रॉब्लम नहीं. हाँ, बट खाली एक चीज है, आज थर्सडे है, नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को है. वेडनेसडे को है? नहीं, वेडनेसडे को भी नहीं होगा. वेडनेसडे को तो छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो तब छुट्टी है. मतलब अब डायरेक्ट लेक्चर एक हफ्ते के बाद होगा. तो एक हफ्ते में भूल मत जाना तुम लोग, नहीं तो पता चला वो 65 का 0 पे आ गया, तो वापस 0 से चालू करना पड़ेगा. नहीं सर, लिख के रखा है. सर ये वाला जो है आप पीपीटी भेज दो ना सर, तो हम लोग क्या एक हफ्ता जो है प्रैक्टिस करते बैठेंगे शाम को, फिर 4-5 टाइम. ये सेम हाँ सम. सर, और एक एग्जांपल भी दे दो चाहिए तो. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, सेम सम को क्यों 4-5 बार रट्टा मारने का है? ये नहीं रट्टा नहीं सर, वो क्या अभी अगर सेकंड रट्टा इन द सेंस एक ही सम क्यों 4 बार सॉल्व करने हैं? तुम बोलो ना मैं 4 सम देता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा है, मेरे पास टॉपिक बहुत सारा है. एक हाँ, चलेगा सर. अरे ठीक है भाई, हाँ, तो ये ले लो ना. सी सेकंड सम जो है वो ले लो तुम लोग, चलेगा. सेकंड वो तुम लोग ले लो. इसको मैं इधर होमवर्क ही कर देता हूँ, मेरा काम और इजी हो गया. मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाला था वो तुम लोग अभी कर लो. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. और जो ये शेयरिंग का बोल रहे थे, तो व्हाट यू कैन डू इज आई विल सजेस्ट कि अभी नया सम तो चालू करना नहीं है अपने को, राइट? तो ये 2 स्क्रीनशॉट में ना तुम लोग को सब आ जाएगा. तो एनी वन ऑफ यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और तुम्हारा ग्रुप में शेयर कर दो, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. जब ओके सर, जस्ट अ सेकंड. तो कौन करेगा? केयरफुली यू आर डूइंग और समवन एल्स विल डू? नहीं सर, मैं करता हूँ. हाँ, ठीक है. इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो. डन सर. और ये नीचे का डायग्राम तो नहीं चाहिए ना तुम लोग को, कि ये भी चाहिए? नो सर. आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ. हाँ, तो ये तुम्हारा सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लो. सर कितने मार्क्स डन सर, डन सर. ओके, तो ये दोनों सर, होमवर्क स्क्रीनशॉट दिखाओ ना. शेयर कर दो. हाँ, एक मिनट. हाँ, सर ये कितने मार्क्स का आएगा समझ? कितने मार्क्स का आएगा? अगेन आई विल गिव यू द सेम आंसर कि एट प्रेजेंट अपने को तो पता नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा कि सर ऑनलाइन एग्जाम. ऑफलाइन मोड हाँ? में कितना मार्क्स आएगा? ऑफलाइन मोड में हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. ऑनलाइन में तो इतना बड़ा आएगा नहीं, राइट? 4 आइट्रेशन आएंगे नहीं, एक आइट्रेशन आ सकता है ऑनलाइन में. ऑफलाइन में अगर ये सब आया तो इट विल बी फॉर से 5 to 6 मार्क्स.
ओके सर सर यस टेल। सर ये जो होमवर्क वाला समय अगर हम लोग को नेक्स्ट हफ्ते नहीं आया तो आप करके बताओगे क्या ये है प्लीज? तो करेंगे ना हम लोग क्लास में। जी मैंने अभी तक कभी मना नहीं किया कि तुम लोग का होमवर्क का सम मैं क्लास में नहीं करूंगा। मेरा एक ही कंडीशन है, होमवर्क वाला सम या प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्लास में करना है। एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू गिव मी द अश्योरेंस कि तुमने ट्राई किया करके, राइट? तो एटलीस्ट तुम जो स्क्रिबल करोगे, रफ वर्क करोगे, वो मेरे को दिखना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि आज अगर से फॉर एग्जांपल कैफ अली वो पूछ रहे कि सर अगर होमवर्क का सम नहीं आया तो आप करोगे कि नहीं, तो मैंने बोला मैं करूंगा क्लास में, राइट? 27 को तेजस आके डायरेक्ट बोल देगा सर वो सम आया ही नहीं, सर करो अभी। आई शुड गेट सम अश्योरेंस ना कि बाबा तेजस बोल रहे तो तेजस ने ट्राई किया कि नहीं किया, उतना तो मेरे को कन्विंस तुमको करना पड़ेगा। कि अगर तेजस बोल रहे कि सर मैंने किया मेरे को नहीं आया आप अभी बताओ, तो मेरे को पहले ये कन्विंस करना पड़ेगा तेजस को कि उसने ट्राई किया। खाली नहीं आया और सर आप करो, वो मैं नहीं करूंगा। तुम मेरे को कन्विंस करो, मेरे को रफ वर्क दिखाओ, कितना भी बुरा हैंडराइटिंग में तुम्हारा रफ वर्क रहने दो, इट इज ओके। मैं पहचान जाऊंगा कि तुम लोग ने क्या किया है करके। मेरे को खाली वो चीज चाहिए तुम लोग से कि यू शुड ट्राई। तुम लोग को 4 आइटरेशंस नहीं आया, परफेक्ट। 1 आया, 2 आया, 1 भी नहीं आया तो भी चलेगा, बट तुम लोग प्रैक्टिस किया, ट्राई किया, वो मेरे को दिखना चाहिए, तो मैं करूंगा। ब्लाइंडली तुम बोल दोगे सर नहीं आया और आप करो, तो मैं नहीं करूंगा। वो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। ओके सर। ओके ठीक है? बिकॉज सी वैसे भी ऑफलाइन में भी आई हैव एक्सपीरियंस के स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर नहीं है, बिकॉज एंड ये भी होता है, आई टेल यू व्हाट सी ऑनलाइन में तो भी ठीक है, तुम लोग का मिलना बहुत कम हुआ रहेगा, हार्डली 1 और ट्वाइस यू वुड हैव मेट। बट ऑफलाइन में क्या होता है, रोज तुम लोग जाते हो तो रोज मिलते हो, एक ग्रुप बन जाता है। तो अगर तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 40 का ग्रुप बन गया ना, तो वो लोग क्या करते हैं 40 की 40 बोल देंगे कि सर हमने ट्राई किया नहीं आया करके। व्हाट यू विल थिंक, इतना सारा जन बोल रहे तो सर कराएंगे करके। बट आई हैव लर्न कि ये जरूरी नहीं है कि 40 का 40 ट्राई किया और नहीं आया करके। एक ने किया नहीं आया तो एक का आवाज 40 का आवाज बन जाता है। वो ऑफलाइन में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी तो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में तो you also know, you have also learned many things, correct? तो इसके लिए if you show me the rough work, तुम लोग एक सम क्या 4 सम बोलो मैं करवाऊंगा करके, I don't have any objection in doing that, but I don't want कि तुम लोग खाली स्मार्टली बोल दो कि सर नहीं आया, तुम लोग नहीं आया बोल के छूट गया, मजा करोगे और मैं यहाँ पे बैठ के सम करूंगा, वो नहीं होने वाला। ठीक है? So I will Yes, do. sir. If you are not getting, I will do. Not a problem. ओके सर, थैंक यू। Yes. और कुछ किसी को पूछना है सम के बारे में? नहीं सर, जिनका No, sir, क्वेश्चन लिख के हो all गया clear. वो लीव कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, जिनका क्वेश्चन लिख के होगा, जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था वो लिख के हो गया, वो हाँ, लीव कर होमवर्क सकते का हैं? क्वेश्चन हो गया तो लीव कर सकते हो। मैं भी कुछ नहीं नया नहीं सीखने वाला हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी मीटिंग एंड करता हूँ करके, क्योंकि बीइंग द फर्स्ट सम वो डाउट आना ऑब्वियस है करके। इसके लिए मैं एक आधा मिनट रुकेगा कि इफ यू हैव डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। No, sir, all clear. ठीक है, ओके। तो आई विल एंड द लेक्चर, विल